one, halogenation of ethers. Halogenation occurs either in presence of light or in absence of light. Simply a substitution reaction. Either in presence of UV light or sunlight. Second one is or in absence of light. In presence of light, substitution occurs via free radical mechanism. See, if we have an ether like this, dimethyl ether, halogenation, कोई भी एक हैलाइड आप यूज करो. Say we will use this Cl2. Now it will depend upon the conditions. आप क्या यूज करोगे. अगर आप लाइट यूज करोगे तो उस टाइम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अगर आप लाइट नहीं यूज करोगे तो उस टाइम एक और रिएक्शन होगी. समझ आ रहा है. So let us start with, we will use light in the first case. We will use light. What actually happens is, since this is having alpha hydrogens on both the carbons, because of this light we have this substitution of hydrogens by halide. In this case, all the 3 hydrogens from this carbon and these 3 also are substituted with halide. That means you will get CCl3 plus HCl. It's known as perchlorodiethyl ether because of free radical mechanism. First one, in absence of light. This is why free radical mechanism. But now the second one is, again, if we will use the same reactant, that is dimethyl ether, but in absence of light, only one hydrogen from both the carbons. That means CH2Cl, oxygen, and CH2Cl plus HCl is formed. Dimethyl ether is the product. This is in absence of light, absence of HNu. Reaction with an acid, or we can say formation of salt takes place. इसमें आप क्या है, second method, whenever you will use an acid like HCl, salt formation will take place. Salt formation. See, if we have again this dimethyl ether in presence of an acid like HCl, you will get salts. The salts क्यों बन रहे हैं? See, अगर यहाँ पर आप देखोगे, acid will always donate a proton. This proton will be now available on oxygen. किस पर होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 lone pairs. So that means we will get CH3OH, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा CH3 और Cl बच रहा है. That means वो बाहर होगा.
as Cl negative. समझ आ रहा है? तो दिस इज नोन एज सॉल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। क्या है नाम? ऑक्सोनियम सॉल्ट्स इनका नाम है। टू। अब तीसरी है, थर्ड वन इज peroxide formation. Peroxide formation. It is simply an oxidation reaction. Peroxide formation. Atmospheric oxygen actually oxidizes these ethers into peroxides. Peroxides. That means if we have an ether like this, in presence of atmospheric oxygen, we will get peroxides. Peroxides की फॉर्मूला क्या होती है? मैंने बताया था एक बार, peroxides में एक लिंकेज होती है। क्या होती है? जैसे H2O2 में ये वाला है। So this will donate one of the lone pair to the incoming oxygen. This is simply a peroxide. Peroxides are formed. Dehydration of ethers. Dehydration of ethers are dehydrated in presence of aluminum oxide at a high temperature, Al2O3, at a high temperature 413 kelvins to form olefins or alkenes. Products formed are alkenes. Products क्या बनते हैं? Alkenes. ये वाला देखो, CH3 in presence of Al2O3 we will get, हाँ प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसमें? We will get CH2 double bond CH2 plus H2O. हाँ जरा ये बात देखो क्या होता है, 413 केल्विन। दैट मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, तो विल गेट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर, फिफ्थ वन, reaction with hydrogen iodide, called hydrogen iodide. Hydrogen iodides reacts with these ethers. Products formed are alcohols and alkyl halides. हाँ क्या है इसमें products? Alcohols and alkyl halides. So this one, CH3, CH2, oxygen, CH2, CH3, हाँ, in presence of hydrogen iodide, called hydrogen iodide, negative and positive। तो होता क्या है इसमें, क्योंकि we have an oxygen is highly electronegative instead of carbon. That is why इसमें जो अगर चार्ज होगा वो ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। That negative charge will actually attack on this proton H positive. तो जब ये अटैक करेगा, one of the bond between the carbon and oxygen will break. तो उसकी वजह से क्या बनेगा? If this part will go with the hydrogen, then we will get, हाँ क्या बनेगा फिर? CH3, CH2, oxygen और hydrogen. This is simply an क्या है? Alcohol. CH3, CH2, OH.
और इसके बाद हमें क्या रहा है, ये वाला पार्ट, ये किसके साथ जाएगा, आयोडीन के साथ। फिर दूसरा क्या होगा प्रोडक्ट, CH3 CH2, इसमें इंटर लिंकेज जो है दैट इज कंप्लीटली ब्रोकन। तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट इज इथेनॉल, और दूसरा जो है उसमें क्या है, क्लोरोइथेनॉल, सॉरी आयोडोइथेनॉल। दूसरा नाम क्या बताओगे इसका, आयोडोइथेनॉल, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। सो वी हैव प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स, इसमें प्रोडक्ट्स बन रहे। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो और हाइड्रेशन in presence of a catalyst that is H2SO4, hydration of ethers in presence of catalyst H2SO4 is simply hydration in presence of catalyst that is H2SO4। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, हाँ प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसमें, जरा कोई बता सकता है क्या होंगे प्रोडक्ट्स, अगर इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट, दिस वन CH3, अगेन वी विल टेक डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। हाँ इसकी अगर हाइड्रेशन हम करेंगे, बताओ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हाँ बता क्या प्रोडक्ट्स, जरा आप बताओ प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, क्या होगा प्रोडक्ट, चूंकि इसका नेगेटिव है, हाँ ये वाला देखो, दिस नेगेटिव पार्ट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव, ये वाला पार्ट ये इसके साथ नहीं, यहाँ से H पॉजिटिव ले लो, दिस इज O नेगेटिव, और यहाँ क्या है H पॉजिटिव। हाँ जरा बता क्या बन रहा है प्रोडक्ट, फिर इथेनॉल, और यहाँ से क्या बनेगा, दूसरा भी क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल किसका होगा, इथेनॉल का। दैट मीन्स वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होंगे, इथेनॉल, CH3 CH2 OH but twice. So alcohols are formed by the hydration of diethyl ethers in presence of a catalyst H2SO4। Sixth, अब एक और है, that is in fact the last one, last reaction है, reaction of ethers with phosphorus pentahalide। आपको याद होगा जब भी फास्फोरस पेंटाहालाइड है कोई रिएजेंट होता है तो इसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता था, याद है किसी को क्या बनता था, फास्फोरस, हाँ PCl3 प्लस H, नहीं फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड POCl3, याद है, वो बनता था इसमें, और याद रखो दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन। सो अगर हमें ईथर्स होंगे, इथाइल ईथर ये वाला, दिस विल रिएक्ट विद फास्फोरस किसके साथ, पेंटाहालाइड। अब मैं ऐसे लिखूंगा PCl3 क्लोरीन क्लोरीन। अब होगा क्या इसमें, बिकॉज ऑफ दिस, हाँ जरा बता, कोई बता सकता क्या होगा इसमें, फास्फोरस की काम क्या है, यूजुअली ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है किससे, रिएक्टेंट से। अब ये क्या बनाता है, उसकी वजह से हमेशा ये क्या बनाता, POCl3, याद है, POCl3, दैट मीन्स
ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और हमें जो बच गए हैं वो क्या बच गए, 2 हैलाइड्स। वो 2 कार्बन इस पर अटैक करेंगे यहाँ और यहाँ, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या होगा प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है अगर सेम है। हाँ यहाँ पर इसमें क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ईथर है वो सिंपल है, अगर ये मिक्सड होता तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल की वजह से एक ही क्या होगा प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स हमें मिलेगा CH3 CH2 और Cl, बट ये होगा ट्वाइस, ये होगा ट्वाइस। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा है, दिस इज ए सिंपल ईथर। अगर हम मिक्सड वाला यूज करेंगे, मिक्सड मींस तो उस टाइम क्या होगा डिफरेंट प्रोडक्ट। चलो एक और एग्जांपल करेंगे मिक्सड की। ये वाला लेंगे, से CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3 प्लस PCl3 Cl एंड Cl। हाँ अब जरा बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा। और सबसे पहले हमें क्या बनता है, ये वाला फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड POCl3। फिर क्या बनेगा, अब बताओ अब प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसमें, क्या क्या होगा प्रोडक्ट, ये वाला और क्या होगा, हाँ CH3 CH2 Cl। वेरी गुड, ये वाला। तो 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स, एक है मिथाइल क्या क्लोराइड, दूसरा है इथाइल क्लोराइड, दिस मिथाइल क्लोराइड। और ये वाला है क्या इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड।